Very good morning, Diya Agarwal. Before we go proceeding today's online PowerPoint presentation, we take the formal permission from our Worthy Principal Ma'am, Dr. Rama Sharma ji. Today here we gather online PowerPoint presentation, online PowerPoint presentation. We have so many online PowerPoint presentation during our semester. Now we come forward to even semester. So all we together here online PowerPoint presentation as Thursday activity of even semester. Miss Diya, Miss Komal, all are present over there, here. And today's topic, very important subject, cost accounting 2, a topic productivity analysis. Our resource person, today's resource person, Miss Gunjan Singla. She is very excited to present herself in each and every field. Last time experience with her is very excellent, very remarkable, memorable. Now the time comes again. Our today's special guest one, very smiling face, Mr. Sahil Garg of BCom final year, sixth semester. And my dear students, good morning to all from my side. Myself, Assistant Professor Swarn Singh of PG Department of Commerce, ST College Barnala, which is one of the superior institution of surrounding area. Now I do not waste much of your time between our today's expert, Miss Gunjan Singla, and you people. So I invite Miss Gunjan Singla to present her online PowerPoint presentation on productivity analysis. Once again, warm welcome to all of you people from my side. Over to Miss Gunjan Singla. PPT is ready. And Miss Gunjan Singla. Yes, thank you, sir, for giving this opportunity. Good morning to one and all. Before starting the productivity analysis, I want to share my views on productivity.
Productivity isn't everything, but in the long run, it is almost everything. A country's ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its output per worker. Then let's start the productivity analysis. Firstly, we will see the meaning. Productivity is a measure of how efficiently resources are combined and utilized in the firm for achieving the desired outcome. प्रोडक्टिविटी हमेशा कंपैरेटिव टर्म में होता है, यानी कि कैसे कंपनी जो है कैसे एफिशिएंटली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है और कैसे फॉर्म में यूटिलाइज कर रही है कंपनी की डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। वो मेजर जो है उसको प्रोडक्टिविटी कहलाते हैं। Then next, productivity is computed by dividing average output per period by total cost incurred or resources. इसका मीनिंग है क्या हम इनपुट यूज करते हैं और क्या हम आउटपुट मिलता है। जब हम कम कॉस्ट से ज्यादा गेन करते हैं उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब कुछ भी हम यूज करते हैं, क्या एनर्जी हो, क्या मटेरियल हो, क्या पर्सोनल हो, क्या सिस्टम हो, और कोई भी कुछ भी हम यूज करके जब हम ज्यादा से ज्यादा गेन करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी कहलाते हैं। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर हमने प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हम आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी और किसी भी फर्म की। देन डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, productivity means a balance between all factors of production that will give the maximum output with the smallest effort. पीटर ड्रकर ने कहा था कि एक बैलेंस होता है इनपुट और आउटपुट में जिससे हम बहुत कम एफर्ट्स करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू आउटपुट इन पीरियड ऑफ टाइम divide by input in same period of time. Next, then example according to this table हम जान सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी को हम 3 स्टेप्स की हेल्प से समझ सकते हैं। पहला आता है इनपुट, देन प्रोडक्शन सिस्टम और अंत में आता है आउटपुट। इनपुट में हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं लैंड, वर्कफोर्स, मटेरियल एक्सेट्रा। देन इन इनपुट की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिल जाती है जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम एट द एंड कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नेक्स्ट, मेजरमेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्टिविटी एनालिसिस। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. Productivity formula can be used to calculate the productivity of your complete production process or of a particular process or machines within your production process. इससे ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट लाइन का भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट प्रोडक्शन का भी निकाल सकते हैं, लेबर का भी निकाल सकते हैं, किसी भी मटेरियल का भी निकाल सकते हैं और किसी भी सेल का भी हम निकाल सकते हैं। Both output and input must be expressed in numerical values to calculate the productivity. Productivity कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आउटपुट और इनपुट हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये नंबर्स में ना हो तो हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट showing the table, हमें एक टेबल गिवन है, उसमें क्या है प्रोडक्टिविटी को हम 2 स्टेप्स में मेजर कर सकते हैं। पहले तो हम टोटल प्रोडक्टिविटी से और दूसरा इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी से। इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी में हम लेबर प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट लेते हैं, मटेरियल प्रोडक्टिविटी को भी कर सकते हैं, मशीन को भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल में लेबर को भी कर सकते हैं, मटेरियल को भी कर सकते हैं, मशीन को भी कर सकते हैं, कैपिटल प्रोडक्टिविटी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, वी विल प्रोसीड ऑन टोटल और व्हाट वी कैन से एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी में हम सभी इनपुट्स के साथ में लेते हैं और आउटपुट से कंपेयर करते हैं।
इसे एग्रीगेट बेसिस प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। टोटल और एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट। टोटल आउटपुट यहाँ हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड टोटल इनपुट में हमारे पास लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड एनर्जी ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी। नाउ टोटल प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट में हमारे पास एक कंपनी है जो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, कितने पे? 10 पर यूनिट सोल्ड पे। हमारे पास लेबर कितनी दी हुई है? लेबर आवर्स कितने दी हुई है? 500। लेबर और रेट कितना दिया हुआ है? 9 पर आवर। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 30,000। ओवरहेड हमारे पास दिए हुए हैं 15,500। इनपुट में हमारे पास यहाँ पे लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। देन इसमें गिवन वैल्यूज को पुट करके हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाती है। टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर प्लस मटेरियल प्लस ओवरहेड। देन टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस हुई है 10,000, 10 पर यूनिट पे। देन हमें आउटपुट मिली है ये सारी हमारे पास आउटपुट आई है, यूनिट आई है तो 10 पर यूनिट पे। देन नेक्स्ट लेबर में 500 लेबर आवर्स और पर और भी हम इससे लेबर और को लेबर रेट पे हम मल्टीप्लाई करके लेबर प्रोडक्टिविटी निकलती है। देन फिर हम निकालेंगे मटेरियल हमें दिया हुआ है 30,000 एंड देन हमें ओवरहेड दी हुई है 15,500। इससे हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्टिविटी की नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। On individual basis, output is compared with any one of the input factors and this is called as partial productivity. इसमें इनपुट के किसी भी एक फैक्टर से आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाता है और इसको हम पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है लेबर प्रोडक्टिविटी, मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी और कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब हम वन बाय वन इसकी टाइप को देखते हैं। पहली टाइप है लेबर प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है प्रोडक्टिविटी की। लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स। पहली बात तो ये कि हम लेबर प्रोडक्टिविटी को इंडस्ट्री में वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। देन वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स प्रोड्यूस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी होती है ये बेसिकली होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का वो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, जैसे गिवन अमाउंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि एक शिफ्ट भी हो सकती है, एक ओवर टाइम भी हो सकता है, एक डे भी हो सकता है और एक मंथ भी हो सकता है कि उस टाइम में हम कितना पार्ट प्रोडक्शन करते हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं या कितनी सर्विस दे रहे हैं। It is a measure of an organization or company or process, an industry or a country. लेबर प्रोडक्टिविटी को हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए और किसी भी कंट्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी मेजर्स आउटपुट पर लेबर और ये लेबर प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेबर प्रोडक्टिविटी है जो इसकी ये आउटपुट पर लेबर और पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू द लेबर इनपुट। लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट देन हम लेबर प्रोडक्टिविटी के एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी है रिबन प्लास्टिक हमने ली है,
ठीक है। एक कंपनी है रिबन प्लास्टिक जो कि हर महीने 5000 पार्ट्स बनाती है, और इन 5000 पार्ट्स को बनाने के लिए टोटली मंथली लेबर हमारे पास है 1250 आवर्स। व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी? इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लेबर आवर्स पर मंथ डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड पर मंथ। हमने मंथ क्यों लिया? हमने मंथ इसीलिए लिया क्योंकि हम मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें क्वेश्चन में मंथली गिवन है, इसलिए हमने मंथली लिया। जरूरी नहीं है कि ये मंथली के हिसाब से ही लिया जाए, ये आवर्स के हिसाब से भी लिया जाता है, ये डे के हिसाब से भी लिया जाता है, और हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देन पुटिंग द वैल्यू इनटू फॉर्मूला। हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड पर मंथ है 5000 और लेबर आवर्स पर मंथ है 1250, और हमने ले लिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हम 5000 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 5000 हम नीचे लिखेंगे और 1250 हम ऊपर लिखेंगे। देन और हमारा ये लेबर और आ गया 0.25 पर और यूनिट। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट बनाने के लिए 0.25 और लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। Material productivity which is given as total output divided by material output, या हम कह सकते हैं number of unit produced divided by total material cost। Material productivity हमारे पास हमारी cost of production में important role निभाती है, और ये डिपेंड करती है कि कैसे हम मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। Next है machine productivity. Production system converts raw material into finished products through mechanical process or chemical process with the help of machines and equipment. According to this, जैसे कि हमें पता है कि प्रोडक्शन सिस्टम में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, और ये कन्वर्जन मशीन्स एंड इक्विपमेंट की हेल्प से होता है। सो हमारी मशीन प्रोडक्टिविटी होती है टोटल आउटपुट डिवाइड बाय मशीन इनपुट, या हम कह सकते हैं आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल मशीन आवर्स। Machine productivity depends upon availability of raw materials, power, skill of worker, machine layout, etc. Machine productivity depend करती है important factors जैसे कि raw materials, power, skill of workers और machine layout पे। At last हमारे पास आती है capital productivity. For any production setup, facilities of machines, tools and etc. require which are assets of organization. Capital is need for such assets. Capital productivity is the last measurement of the productivity. किसी भी प्रोडक्शन के सेटअप के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जैसे कि फैसिलिटीज ऑफ मशीन्स को देखना पड़ता है, टूल्स, लैंड, जो कि एसेट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी के, एंड बी ऑल इन सब एसेट्स के लिए हमें चाहिए होती है कैपिटल। सो कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज टोटल आउटपुट डिवाइड बाय कैपिटल इनपुट, या हम कह सकते हैं टोटल आउटपुट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, एंड ये डिपेंड करती है कि कितने इफेक्टिवली हम एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसमें पहले हमारे पास आ जाता है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, अगर कंपनी के पास प्रोडक्टिविटी होती है तो उससे आउटपुट भी ज्यादा आती है, विच इन टर्न मैक्सिमाइज द कंपनी प्रॉफिट। सो जो हायर प्रोडक्टिविटी होती है वो कंपनी के प्रॉफिट को एक्सपैंड करती है। नेक्स्ट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ, जैसे कि हमें पहले देख चुके हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी सिस्टम कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इससे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी प्रमोट होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विसेज। हायर प्रोडक्टिविटी के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, क्योंकि इससे कस्टमर को लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होते हैं,
जिससे कंपनी की तरफ कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटर रिटर्न। हायर प्रोडक्टिविटी से कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न्स मिलती हैं, जिससे वो अपने शेयर होल्डर्स में गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिससे शेयर्स की मार्केट भी प्राइस इंक्रीज होती है, जिससे शेयर की मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नाइस रिलेशन। हाई प्रोडक्टिविटी से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। अच्छी फैसिलिटीज जैसे कि गुड वर्किंग कंडीशंस एंड इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट गुड क्रेडिट रेटिंग्स। हाई प्रोडक्टिविटी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा गुड क्रेडिट रेटिंग्स होती है, जिससे कंपनी को मार्केट से चीप फंड्स मिलते हैं, जिससे वे अपनी वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट गुडविल। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास हमारी गुड रेपुटेशन होनी बहुत लाभदायक मानी जाती है। नेक्स्ट हम हायर प्रोडक्टिविटी से सोशली कंपनी की गुडविल भी अच्छी बनती है। सोशली जैसे गवर्नमेंट, सोशल शेयर होल्डर्स, सप्लायर, कस्टमर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। 8 पॉइंट हमारे पास एम्प्लॉयज वेलफेयर। हायर प्रोडक्टिविटी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, जिससे कि एम्प्लॉयज को बेटर फैसिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। 9 पॉइंट है हमारे पास बेटर क्रेडिट टर्म्स। हायर प्रोडक्टिविटी कंपनी को सप्लायर से बेटर टर्म लेने में हेल्प करती है। जो सप्लायर्स होते हैं वो कंपनी की गुडविल के कारण उन्हें बेटर क्रेडिट टर्म्स देते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज लो टर्नओवर। हायर प्रोडक्टिविटी से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेटर फैसिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जिससे उनके एम्प्लॉयज लॉयल बनते हैं, जिससे एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट हमारे पास टेक्निकल फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी लार्जली डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे, इसलिए टेक्निकल फैक्टर जैसे कि प्रॉपर लोकेशन लेआउट, साइज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैरेक्टर्स, डिजाइन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिवनेस भी हाई होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट रिलेट करती है प्रोडक्शन फैक्टर से, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्शन प्रॉपरली प्लान्ड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल होनी चाहिए। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अच्छे से होगा तो प्रोडक्टिवनेस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर से, जिसके कारण सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर यूज करनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सोनल फैक्टर्स। जो प्रोडक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है पर्सोनल फैक्टर से, इसलिए एक सुटेबल पोस्ट के लिए सही इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना चाहिए एंड आफ्टर सिलेक्शन उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्हें वर्किंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। उसे फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंस फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी रियलाइज करती है फाइनेंस फैक्टर्स पर। फाइनेंस एक टाइप से मॉडर्न बिजनेस के लिए एक लाइफब्लड होता है, इसलिए फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी रेस्ट करती है मैनेजमेंट फैक्टर्स पर, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट साइंटिफिक, प्रोफेशनल, फ्यूचर ओरिएंटेड, सिंसियर एंड कॉम्पिटेंट होनी चाहिए।
अच्छे मैनेजर के पास इमेजिनेशन एंड जजमेंट जैसे स्किल्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है गवर्नमेंट फैक्टर्स पर। मैनेजमेंट को गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी होने चाहिए। लोकेशन फैक्टर्स, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लोकेशन फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी लोकेशन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, नियरनेस टू द मार्केट एंड सोर्स ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। द नेक्स्ट and last, improvement factors of productivity. First है be efficient. बेटर एफिशिएंसी के लिए हर एक स्टाफ मेंबर्स के पास एक वेल प्लान होना चाहिए और लिस्ट होनी चाहिए जिसपे वह अपने टास्क को वेल डिसाइडेड टाइम पर कंप्लीट करें। नेक्स्ट डेलीगेशन आती है रिस्क से, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हेल्प करती है स्टाफ को जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्वालिफाइड एम्प्लॉयज एक सर्टेन फील्ड में एक अच्छे सक्सेस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया पर बड़ा कारण है प्रोडक्टिविटी के खत्म होने का। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है प्रोडक्टिविटी के खत्म होने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नो फोन पॉलिसी को अपनाया जाए किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि एम्प्लॉयज को फोकस्ड एंड एंगेज रखने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हैव द राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। बेटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि प्रिंटर्स देके, स्कैनर्स देके, फैक्स मशीन देके हम एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव वर्क प्लेस कंडीशन। हमें पता है कि एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा इन्वायरमेंट कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें एम्प्लॉयज की कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे एम्प्लॉयज अपना टाइम इलेक्ट्रिक फैन या हीटर के पास वेस्ट कर देते हैं। बट हम अगर वर्क प्लेस कंडीशंस हम उनको वर्किंग फैसिलिटीज अच्छी देंगे तो वो अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा अपना काम करने में ही लगाएंगे, ना कि अपना टाइम इलेक्ट्रिक फैन या हीटर के पास खड़े होके वेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है ऑफर सपोर्ट एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स। मैनेजर्स की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज की क्लैरिटी नहीं होती कि कौन हाई परफॉर्मिंग है या कौन लो परफॉर्मिंग है। एम्प्लॉयज को अचीवेबल गोल्स प्रोवाइड करके हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट इज एंश्योर एम्प्लॉयज आर हैप्पी। एक स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। ये तो हमें भी पता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हमारा कहीं भी ध्यान नहीं रहता। तो अगर एम्प्लॉयज स्ट्रेस रहेगा तो वो कैसे काम करेगा। इसीलिए जो वर्कर्स हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑपरेट करते हैं वे कम प्रोडक्टिव होते हैं। इसलिए एम्प्लॉयज का हैप्पी रहना बेटर प्रोडक्शन सिस्टम की नीड है। In nutshell, productivity rate is very important in estimating cost and duration for construction project, and any labor productivity loss would affect to whole project in time and cost. To prevent productivity loss, factors that affect productivity mentioned earlier, rates should be examined as well possible. In nutshell, प्रोडक्टिविटी रेट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट एंड ड्यूरेशन का एस्टिमेट लगाने के लिए, और लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस इफेक्ट करता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के टाइम एंड कॉस्ट को। तो प्रोडक्टिविटी लॉस से बचने के लिए हमें सभी इफेक्टेड फैक्टर्स को पहले ही अच्छे से एग्जामिन कर लेना चाहिए। It is well quoted as, "It's not about being the best.
It's about being better than yesterday. Thank you. Thank you, Gunjan, for providing such a very informative information regarding productivity analysis. One thing I tell you, all of you people, today here we together for online PowerPoint presentation as Thursday activity of even semester on productivity analysis by none other than Ms. Gunjan Singla of BCom final year 6th semester of PG Department of Commerce, ST College Barnala. The presentation is over. Any query? Any doubt? Thank you, Mittal Saab. Rajni Balla. No, sir. Diya Agarwal. No, sir. Everything is Prinka, very right. Amazing presentation, Komal, Nitika, well done, Gunjan. Everything, I think, almost clear, so there's no query. Now, I invite to one more personality of today's topic. I invite to Mr. Sahil Garg for conclude whole of the activity. Over to Mr. Sahil Garg. Good morning, sir, and dear students. Myself, Sahil Garg. So let's start conclusion. Productivity is a concept, and whereas production is a fact, production is achieved by means of resources. Productivity is measured through means of maximum manpower, machinery, financial support. Production is a variable dependent on many factors such as labor availability, motive power, etc. Whereas productivity is the optimum measure of what or how much can be achieved or realized. Improving productivity is not an end in itself, but a means to improving workers' lives, enterprises, sustainability, social cohesion, and economic development. Continued improvement of productivity is also a condition for competitiveness and economic growth. So thank you. Thank you, Mr. Sahil Garg. Now, time to meet one more selected personality of BCom final year. I invite to Ms. Diya Agarwal to deliver a vote of thanks as token of love. Diya Agarwal. Yes, sir. Just talk. Good morning to all of you. I am Diya Agarwal, student of BCom final year 6th semester in ST College, Barnala. First of all, I want to thank our principal ma'am, Dr. Rama Sharma, for giving us permission to organize an online PowerPoint presentation. Next, I want to thank to Professor Amish Kumar sir. Now, I would like to thank Professor Swan sir, who always try to motivate us and encourage us to participate in every activity. Thank you, sir. I am so thankful to Gunjan Singla for giving this informative, wonderful and well-defined presentation. I am thankful to our special guest, Mr. Sahil Garg, to conclude the topic very well. At last, but not the least,
am thankful to all the student participants to participation in this activity and to make it outstanding. Thank you. Thank you, Diya. Thanks from my side also to Ms. Gunjan Singla, Ms. Sahil Garg, and especially, very surprisingly, Ms. Diya Agarwal. And all of, I think, affective audience, BCom final year and BCom second year student also. So, thanks to everybody for joining us for a wonderful session. Now, the session is over.